projectile motion. There are so many variation. Okay, so हम बेसिकली कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो एक चीज है जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रोजेक्टाइल। Like we did our first part. In the first part, we did, there is a specific kind of a projectile motion in that the particle was thrown from the ground and it has landed on the ground itself at the same horizontal level. Okay, now my things are little bit different. Suppose this is my ground. Okay, and I am throwing the ball from a height h. Okay, this is some height h. This is, and I'm throwing a ball from here with the velocity u, and this angle is theta. So tell me, what will be the path of this particle? A projectile. Parabola. Yes. Parabola ही होगा because our acceleration is constant. Okay, so suppose if I take out this line imaginary, the है ना, so from here to here the motion of the particle will be like this, our regular, but now the particle will come down because there is a space to come down now, so it will come down. So suppose this height is h, we are thrown a ball from a height h, and I am taking this point as my origin. सर इसे जनरल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यस यस यस, जिसके अंदर हाइट वाइट सब कुछ है। अगर इसमें h का वैल्यू अपने 0 हो गया तो क्या बन जाएगा? अपना पहला केस ग्राउंड टू ग्राउंड ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाएगा। तो फिर अपना ग्राउंड टू ग्राउंड बन जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर अपने थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, तो हमारा वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं जनरल प्रोजेक्टाइल। ओके, अब मुझे सेम चीज करनी है। सपोज इसको ओरिजिन बोला तो हमारा एक्स एक्सिस कौन सा बनेगा? ये जो एक्सिस है ये हमारा बन गया y एक्सिस, एंड दिस इज अवर x एक्सिस। ओके, सो all the things we'll find out, but इसके अंदर there are no formulas. Okay, you have to learn the procedure, not the formula. So tell me, initial जो velocity है वो क्या है? u cos theta. Okay, initial cos theta velocity t. is u cos theta I cap plus u sin theta sin theta minus half gt. अच्छा नहीं, हमने स्पेसिफाई कर दिया है ओनली द इनिशियल, बिकॉज इन द इनिशियल डायरेक्शन ये यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएगा u cos theta and the upward direction is u sin theta. Okay, velocity at any point u cos theta t, any point जिसको हम बोलते हैं velocity vector v. I know that x component of the velocity will be same because there is no acceleration. I say ax equal to 0 and ay equal to minus 10 because I am taking this positive and this positive. So, but my gravity acts downward, so my gravity will become, so velocity at any point क्या बन जाएगा? u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. Fine? Yes sir. Okay. आगे आते हैं। पोजीशन वेक्टर, position vector is r vector, that is what, at any point of time what is the x coordinate and y coordinate. So x coordinate is displacement in the horizontal direction
and y coordinate is displacement in in vertical y direction. direction. So we know what is x coordinate, u cos U theta cos into, theta t. I guess. because acceleration in the horizontal direction is 0, and Zero. in y direction it will become u sin U theta sin t T minus. minus half gt Minus square. half GT square. Okay. These are the things which we are doing in the last projectile motion. No change in all this. Okay, everything will be same. Now points. Time of flight. What is the definition of time of flight? The time Time for which the object is in the air. the air. Air. Yes. So my particle started from here, the highest point. Okay, this, and it is striking here. So this point is suppose A, this point is B. So I will say time taken by object from point A to point B is my time of flight, right? See in the diagram, right? Yes, Okay. sir. So I will say time taken from point A to point B. Now tell me, which equation you will allow? Okay, I will ask, don't answer. I will ask by name. Okay. Mansi. Mansi. Open your mic. Garv. गर्व थाने अबे हो कि नहीं है ही नहीं यार कोई आंसर ही नहीं कर रहा कोई तो संजना लीव कर दिया नहीं सर वो अलग है वो अमित संजना Yes, sir. ओके बताओ which equation you will apply to get time of flight कौन सा इक्वेशन लगाते हैं ओके बताओ what will be the xy coordinate of this point x coordinate will be range and the y coordinate will be how much suppose that this is my point my origin is here at point A so what will be the y coordinate of point B minus h. Minus h. अबे मैं संजना से पूछ रहा हूँ तुम लोग आंसर कर रहे हो हाँ संजना coordinate will be minus h because this is below the origin na so minus h so I will apply a equation in the y direction from A to B so I will say कि क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का माइनस एच दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर यही आ गया ना हमारे पास में तो हमारे पास क्वाड्रेटिक है हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू इसका t का वैल्यू देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर दिस because height in every case is a different so answer will be different okay अच्छा अब मुझे Yes, बताओ ये रेंज बेटर है सर है ना बेटर है ना ओके रेंज ऑफ एन प्रोजेक्टाइल क्या मतलब होता है रेंज का horizontal distance covered by the Horizontal object distance. हाउ फार हाँ राइट हाँ हाउ फार यू मीन से डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन तो बताओ कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया ना ये वाला इसको बोलते हैं आर रेंज Hello. Range. क्या बन जाएगा रेंज u cos थीटा T. तो ये तो हो गया उसका वेलोसिटी इनटू t कहां से आएगा t फ्रॉम ऊपर से टाइम ऑफ फ्लाइट
है ना, अपनी ऊपर वाली इक्वेशन से। ओके चलो और बताते हैं। मैक्सिमम हाइट सर एच सर मैक्स सही नहीं प्लस होगा ना? एच ले सकते हाँ हैं ना, एच हाँ एच मैक्स प्लस एच। ओके, ये देखो इधर डायग्राम में पार्टिकल यहाँ से मैंने थ्रो किया था, पार्टिकल यूं ऊपर गया और यूं नीचे आ गया, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट बताओ कितनी होती है, ये वाली, ये हाइट सर हमने एच कैलकुलेट की, मैक्स ये होता एच है यू मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन by 2 2g. जी। 2G। और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, ये तो हमको क्वेश्चन के अंदर H. गिवन ही है। तो हाइट मैक्स क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर U स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस एच Plus H. प्लस 2। एच। यस, हो गया बस। सर तो ऊपर देर वैल्यू भी पुट कर सकते, क्या क्या कर रहे हो बेटा? टी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना ऊपर वाले को सॉल्व करके। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, तुम किसकी बात कर रहे हो, हाइट की बात कर रहे हो या फिर रेंज की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं तो मैक्सिमम हाइट को तो उससे कुछ मतलब ही नहीं होता ना टाइम ऑफ फ्लाइट से। हाँ सर ठीक है। यहाँ पे बताओ, टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ एन डिसेंड क्या इक्वल होगा? No, sir. नो नो, नो सर। सर। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास में लगता है टी ए, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंड, और यहाँ से यहाँ तक का होता है टी डी। टाइम ऑफ ये दोनों डिसेंट। इक्वल कैसे होंगे भाई, दोनों का पाथ ही अलग अलग है, हमको क्या पता कितना नीचे जाना है उसको। तो इन दिस केस टी ए नॉट इक्वल टू टी डी। ओके, सो जनरल प्रोजेक्टाइल इज कंपैरेटिवली इजियर देन दिस। सर पर अब टाइम ऑफ असेंड और डिसेंड अलग होने से वो इजी कैसे होगा? हाँ, टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ सर डिसेंड इजी अलग है, होने से इजी थोड़ी होगा। इजी हो अरे गया। मैं तो इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कि यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज हियर। हाँ यस वो सर तो है। वही काम आसान ओके, है। जैसे चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज देयर इज ए बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का सपोज तुमको हाइट, सपोज एक तुमको अपने वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड तुमको एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, पता है ना 37 डिग्री का वैल्यूज। हाँ और हाँ और ये जो हाइट है, ये हाइट सपोज तुमको दिया हुआ है ऊपर, सपोज थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो आंसर। सर तब तक ऊपर का दिखाइए ना मैक्स हाइट। हाँ देखो, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो बस। सपोज इसको हमने दे दिया 100 मीटर, ठीक है, फाइन सब कुछ, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड velocity when it strikes the ground। चलो करो आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, इक्वेशन बनाओ अच्छे से और फिर
कर रहे हो क्या भाई? हाँ सर कर रहे सर एक। हाँ तो पहले देखो, सबसे पहले कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, बिकॉज हमारा वेलोसिटी यहाँ की तरफ है 30 मीटर पर सेकेंड। दिस एंगल इज 37, तो इट विल बिकम 30 cos ये, और ये बन जाएगा 30 sin 37। तो क्या होता है 37 की वैल्यू? cos 37 होता है 4/5, sin 37 फोर होता है, बाई थ्री, 4/3। एक सेकेंड या उल्टा बोल, हाँ ये कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो cos 35 विल बिकम 18 मीटर पर सेकेंड ना, नहीं cos है ना, तो 24 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास में बन जाएगा 18 मीटर सर से। साइन 37 3/5 ना, सॉरी 3/4 ना। नहीं ना, 3/5 होता है ना यार, और कहते हैं तुम ट्राइंगल बनाओ ना, तो जो हमारा कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, उसमें ये एंगल 37 है, तो दिस इज 3, दिस इज 4, सो हाइपोटेन्यूज विल बिकम 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट से? जब पार्टिकल इस पॉइंट से नीचे यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन? -100 इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट इज 18t minus half into 10 into t square. So its equation will become 5t square minus 18t minus 100 equal to 0. तो बताओ इसके रूट्स आ रहे हैं कुछ अच्छे से? A is 5, B is -18, C is -100. So the root will become, it will comes out to be approximately 6.66. Okay, so if you will solve it, like t equal to 18 plus minus b square, 18 का square plus 4 into 100 into 5 upon 2a, 2 into 5. Okay, so the answer will approximately will be 6.6 second. सब लोग आ गए यहाँ तक? हाँ सर। चलो आगे हमको क्या निकालना है? रेंज। रेंज हमारे पास में होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है हमारे पास में? 24, सो 24 इंटू 6.6, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। फाइन, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, सो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 158.4 158.4 मीटर। फिर हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या बन जाता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस जिस हाइट से हमने उसको को थ्रो किया है ना, वो 100 मीटर है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? u स्क्वायर मतलब कि जो अपना ये है ना वर्टिकल कंपोनेंट, इसका स्क्वायर, सो 18 इंटू 18 बाई 20, तो 16.2, तो 16.2 प्लस 100, तो इट विल कम 6.2 मीटर। यस, ओके। अब बताओ एट व्हाट स्पीड इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड? ग्राउंड को कितना स्पीड से स्ट्राइक करेगा? कि क्या आंसर 30 मीटर पर सेकंड आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा? उससे ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा सर। बिकॉज अगर वो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता, ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी सेम आता, बट नाउ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will be same but vertical component will be different.
सो माय क्वेश्चन विल बी, सपोज हमने यहाँ से उसको थ्रो किया, ठीक है, यहाँ की तरफ कंपोनेंट कितना है 24, राइट, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है 80 एंड इसको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर जब यहाँ पे आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सेम, जस्ट आई नीड टू फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट। तो बताओ वर्टिकल कंपोनेंट में सपोज v है, सो आई विल अप्लाई इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज v square equal to u square plus 2as, v square this, u square will become how much 24 का स्क्वायर 18 का 18 का स्क्वायर ऐसा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना है -10 और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -100 क्योंकि माय पार्टिकल इज बेसिकली कमिंग डाउन, सो v square will become, क्या होता है 18 क्रॉस 18 324. व्हाट So 324. 324 और प्लस ये कितना बन जाएगा 2000 Yes, sir. 2000, सो प्लस 224 2000, तो मेरे पास जो v आएगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 नहीं 2324 okay, okay, so this is basically my y component, so what will be the speed, इसका रिजल्टेंट होगा ना, तो हमारे पास ये जो स्पीड आएगा v वो क्या बन जाएगा vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर का रूट, सो फाइनल जो v आएगा दैट विल बी vx का स्क्वायर अपॉन vy का स्क्वायर, vx स्क्वायर विल बिकम कितना 24 क्रॉस 24 कितना होता है 576. 576 तो 576 प्लस इसका स्क्वायर कितना है 2 2324 2324 कितना बन गया √2900। अब इसका रूट कितना होता है पता नहीं यार, पता है किसी को 53.8. 53.8 यार इतना एक्यूरेट कैसे कर रहे हो, इतना फास्ट हो गए। हाँ कैलकुलेटर सर हाँ तो अप्रोक्सीमेटली कितना 53.8. 50.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हमने बॉल को थ्रो किया था कहां से, उसका स्पीड कितना था 30, बट जब बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो उसका स्पीड कितना हो गया 53.8। ओके सर तो हाँ सर तो जब भी निकालना हो ये वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला नहीं यूज करना हमको, मतलब ये एनी टाइम कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। हाँ तो कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है ना। यस और क्या Okay. भाई हम we know that the horizontal component will be same but the vertical component will change, so for vertical we can apply the equation of v square equal to u square plus 2as वाला। fine Yes, sir. everyone सर 2 मिनट ये पे। हाँ अब इसी का एक स्पेशल केस लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0 तो क्या बन जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्यों बनेगा भाई, एक मिनट No, sir. एक straight line. हाफ प्रोजेक्टाइल बनेगा सर, हाफ प्रोजेक्टाइल। नहीं यस सो सर स्क्रीन हॉरिजॉन्टली लो ना। हाँ मतलब एक ऐसा क्वार्टर टाइप बनेगा कुछ तो प्रोजेक्ट पैराबोला। ओके 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 वेट सो स्पेशल केस हाइट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब हाइट इज समथिंग बट थीटा थीटा इक्वल टू ये क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू
0। तो हमारा क्वेश्चन कैसा बन जाएगा कि सपोज ये हमारे पास में एक हाइट है, ये हमारे पास में ग्राउंड, ठीक है, ये हाइट h, और एक बॉल को मैंने कैसे फेंका है, हॉरिजॉन्टली। सपोज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने उसको u दे दिया, तो वो इसका नीचे मोशन की कैसा तरफ होगा, है, नीचे की तरफ Yes. प्रोजेक्टाइल में। नीचे की तरफ उसको आना पड़ेगा नीचे की तरफ। क्यों, उसको आगे तो जाना ही है, लेकिन उसको नीचे की तरफ कौन लेके आएगा, ग्रेविटी। Gravity. ग्रेविटी। सो हाफ दिस प्रोजेक्टाइल। is called horizontal projectile. हो गया। Okay. सर आप ये वापस एक्सप्लेन कर रहे थे, लैग कर गया था मेरा। सर एक बार Okay. फिर से explain करो हाँ, ना। राइट। ओके, तो यहाँ पे आओ, इसी डायग्राम में देखते हैं फिर से, कहाँ गया हमारा स्टार्टिंग वाला, ये केस। इसके अंदर अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, सीधा नीचे जाएगा, मतलब सीधा नीचे आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस पार्टिकल को यहाँ पे फेंका, ये है मेरा पॉइंट ए, ठीक है, और ये पॉइंट बी। ए पॉइंट पर हमने थीटा की वैल्यू को 0 कर दिया, तो पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा, लेकिन उसका वर्टिकल में एक्सेलरेशन है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सपोज वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे उसके पास एक तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, u, because there is no acceleration in the horizontal direction, that is why the horizontal component will be same. सर And- जो ऊपर की इसलिए उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सेम रेंज नहीं होगी ना? नहीं, वहां पे हमारे पास वो फॉर्मूले उसी के लिए वैलिड है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, ठीक है। ओके, इसके अंदर कुछ अपना वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा ना वेलोसिटी का, क्या आएगा, सपोज आफ्टर टाइम t, अगर मैं इसको एनालाइज करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, एक x डायरेक्शन एक y डायरेक्शन, हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, u, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस जी। अब सी, अब मैं थोड़ा सा एक तुमको कह दूं, अब सपोज हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, हमने इसको पॉजिटिव लिया है डायरेक्शन को, और यहाँ की जो डायरेक्शन है इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, मेरी मर्जी, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारा एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव जी। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 0 0 हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, जब ग्राउंड स्टार्ट करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, R, H। R, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एच, ठीक है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, चाहे सर तुम माइनस उसको, एच है ना? नहीं, नीचे पॉजिटिव है। आई एम टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, यस तो मेरा कोऑर्डिनेट भी मेरा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, एंड माय एक्सेलरेशन विल आल्सो बिकम पॉजिटिव, ठीक है। इफ यू विल टेक द माइनस थिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम, देयर इज नो नीड, मैं आई एम जस्ट टेकिंग बिकॉज आई वांट टू शो यू दैट there will be no change in the answer if I change my axis. Okay, now tell me, at any point of time जो velocity vector है वो क्या बन जाएगा, ui cap, because x component of the velocity is constant. in the y direction क्या बन जाएगा, GT. because initial is 0. okay. पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या बन जाएगा, u into t, ये तो क्या बन जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट, because in the horizontal direction velocity is constant and y फिर coordinate will be हाफ जीटी Half स्क्वायर। GT square। square. half gt ये तो फॉर्मूला दिख रहा है सब। हाँ ये तो पूरे फॉर्मूला है। हाँ, ये तो फॉर्मूला ही है, ओके। लेकिन ये आई कैप है वो क्या है, जे कैप, याद रखना। अब बताओ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका अपना ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा, जीटी, ये आ गया ना। तो जो ना रिजल्टेंट वेलोसिटी है, द नेट वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज माय स्पीड एट दिस पॉइंट, अगर मैं लिखना चाहूँ स्पीड क्या बन जाता है, स्पीड इज व्हाट, Magnitude of of vector। velocity, so this will become half g square t square, fine।
suppose this is making angle alpha with the horizontal, so what will be the value of alpha? Oh no. क्या होता है अल्फा? tan alpha will become gt by GT by U. u. If अच्छा हाँ हाँ GT by U, yes. if v is the resultant of u and gt, then this angle alpha will become y by x होता है ना? yes. यहाँ पे ओके 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 ओके. अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसी लाइन के अंदर tan alpha, तो क्या होता है y by x, तो y क्या है gt और x क्या है u. So I can say the velocity vector is making an angle alpha with the horizontal, right? Yes, sir. Okay. Now you guys find out the time of flight. क्या होगा? क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ए टू बी. B. Okay. From A to B, what is the displacement in the y direction? minus H. Plus h. H ना positively है. Because I am positive. taking, so I will say h. What is the initial velocity? 0. U sin 0. Half into g into t square. So हाँ. what will it become? Root Root 2 G 2h. H by G. 2gh. This is same as when I drop a हाँ. particle from a height h. So if I am dropping a particle from here, so this will come down here and this will come down here at the same time, because vertical direction is completely independent of horizontal direction. That is why time of flight जो है depends only on vertical component, and the vertical component is 0 in the both cases. So time of flight will be same. Now we'll come to the point. What is Air- range? सर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया तो नहीं, ये जब तक तुमको एयर उसकी बात नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है. सर मुझे अच्छा. पोजीशन वेक्टर से बाद वाला नहीं समझा, स्पीड और वो वाला वापस समझा. ओके बेटा, स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ना. यस सर. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो. एक कंपोनेंट तुमको आई कंपोनेंट दिया हुआ है, एक तुमको जे कंपोनेंट दिया हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं. हाँ, तो मैंने वही तो किया. उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर किया, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर किया और उसका रूट ले लिया. ओके सर. है ना? और उसका एंगल कैसे निकालते हैं? y by x होता है. यस सर. अगर एक कंपोनेंट तुमको ऐसे दिया हुआ है x i कैप प्लस y j कैप, उसका मैग्नीट्यूड. हाँ बोलो. तो पोजीशन वेक्टर में j कैप वाला टर्म गलत है ना? क्यों? सही तो है सर. h हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. क्यों करोगे बताओ? भाई हमने इसको रीजन लिया है ना, इस वाले पॉइंट को रीजन लिया है. अच्छा सर. ओके. तो पार्टिकल हमारे पास में सपोज इतना और नीचे आ गया ना भाई, अगर मैं इसको रीजन लेऊंगा, ग्राउंड वाले पॉइंट को रीजन लेऊंगा तो मेरा आंसर अलग आएगा, उसको लेऊंगा तो अलग आएगा. तो मैं तो हाईएस्ट पॉइंट को रीजन ले रहा हूँ. ठीक है? यस सर. ओके. व्हाट विल बी रेंज? क्या होता है रेंज? हाइट डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव होना चाहिए ना. बेटा आई हैव टेकन डाउनवर्ड जो है डायरेक्शन एज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई माय एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव, माय displacement is also positive. Yes? Okay? Fine. So, okay. What is the meaning of range? Range is Displacement in horizontal direction. In x direction. Displacement x direction. So बताओ क्या बन जाएगा रेंज? हमारा वेलोसिटी कितना है x के अंदर? u. और हमको कितना टाइम लगा है? रूट 2h by 2h by g. बस. तो ये हमारे पास से बन गया रेंज.
Okay. Speed of particle. Speed of object when it strikes the ground. बताओ. सर जब हाँ सर इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी को u cos थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 जीरो अच्छा है ना हाँ वर्टिकल में, इसलिए. सर थैंक यू ओके चलो बताओ. स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड. तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, ये हमारा लास्ट पॉइंट है. यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका यहाँ का कंपोनेंट कितना है u, और यहाँ का कंपोनेंट कितना है 0. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना रहेगा u, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा बताओ. G root 2h by G. 2gh. रूट 2gh व्हेन आई ड्रॉप ए पार्टिकल फ्रॉम ए हाइट h. तो मैं ये क्वेश्चन लगाता हूँ ना, vy का स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay इंटू y. ये भी सेम हो गया सर उस ठीक है. अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले में. तो vy स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन 2gh. तो हमारे पास जो vy आएगा क्या बन जाएगा रूट 2gh. सर तो ये जो कंपोनेंट है ये कितना बन जाएगा रूट 2gh. सो व्हाट विल बी माय स्पीड. तो स्पीड क्या बन जाएगा vx कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा u square plus 2g प्लस. 2gh अंडर हाँ. ओके अगर कोई तुमसे पूछे कि एट व्हाट एंगल इट विल स्ट्राइक, एट व्हाट एंगल, तो ये एंगल सपोज हमने अल्फा बोल दिया, ये वाला. तो यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा एंगल विद ग्राउंड रूट 2gh अपॉन u. तो हम बोल देंगे tan is अल्फा equal इक्वल टू root 2g upon u. u. तो यहाँ से हमारे पास में एंगल आ जाएगा. तो वी कैन अप्लाई ऑल द वेक्टर थिंग्स. ओके yes sir. हाँ भाई. yes sir. ओके तो चलो देखते हैं इसके ऊपर एक दो तुमको क्वेश्चन देता हूँ. सपोज एक ऐसा कहते हैं कि मैन था जिसको कोई प्रोजेक्टाइल मोशन आता नहीं था. दिस इज समवन, सपोज संजना. ओके सर एक मिनट ऊपर लो ना, एक मिनट ऊपर लो. हाँ तो एक बार वो रेंज वाला दिखाओगे. हो गया. फिर वो रेंज वाला एक बार स्क्रीनशॉट लेना उसका. अरे स्क्रीनशॉट क्या ग्रुप पे डाल दूंगा ना मैं लेक्चर नोट्स. तो अच्छा हाँ सर सॉरी थैंक यू. ठीक है. हाँ चंद्रा बताओ तुमको किसको मारना, whom do you hate the most. हाँ संजना. Right. हाँ Right. Hate the most. what come again. Sir, pride मुझे बहुत I don't like it. No, give me the name of any person because we want to shoot that person. Hitler. हिटलर किसने बोला हिटलर. Sir, अबे श्रीकांत. श्रीकांत. चलो बेटा बेटा तुमको ही अरे बिठाऊंगा मेरा क्यों यहाँ. नाम लिया? ये तो तुमको ही कहा. बिठाऊं अरे मैंने कब. श्रीकांत. ठीक है. क्या सर? अब क्या किया कि संजना वांट्स टू हिट श्रीकांत. संजना के पास में है गन है. ठीक है. Sir, श्रीकांत को नहीं सर. फिर किसको मारना है. थैंक यू. हिटलर. गर्व को मार देता है. उसने सर, आंसर नहीं किया था आज. हाँ गर्व आज तुमने आंसर नहीं किया था.
जब मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो संजना के पास में है गन, ठीक है, संजना ने फायर कर दिया बुलेट एकदम स्ट्रेट सामने, क्योंकि कहते संजना को फिजिक्स नहीं आती, बिकॉज शी डजंट नो दैट टाइम बुलेट विल कम डाउन, एंड गर्व इज वेरी calm guy. He is like, okay, I am just sitting here, I don't care. इसने फायर किया बुलेट, and the bullet is going in this direction. The distance here is suppose 200 meter. Velocity of bullet is suppose 50 meter per second. Okay, बताओ गर्व को बुलेट लगेगा या नहीं लगेगा? रेंज कैसे निकालेंगे? बताओ। वो नहीं, वो एकदम अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, एकदम अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। संजना ने गर्व सोचा की कि हाइट को अज्यूम करना है या नहीं करना है? अरे तो वही तो बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से ना। तो देखो संजना ने सोचा कि आई कैन हिट द गाय स्ट्रेट बट द बुलेट विल गो समथिंग लाइक दिस, क्योंकि बुलेट को तो अपने नीचे भी जाना है ना, तो बुलेट विल कम Gravity. हियर, यस, सो शी विल मिस, शी विल मिस द टारगेट। सर ये कैसे पता चला? बिकॉज बुलेट जो है वो हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगी ना, हाँ नीचे भी तो आएगी थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ एन ग्रेविटी। नाउ टेल मी एट ये जो हाइट है, ये हमारे पास में हाइट कितना है, कितना हाइट से उसने मिस कर दिया है? तो आई चेक फर्स्ट, आई नो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज व्हाट, सेम, आई नो दैट ux इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो जब बुलेट इस लाइन के अलोंग आएगी, ये वाली जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है ना गर्व के ऊपर से होती हुई, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? So I will say our displacement in my horizontal direction is 200, velocity is 50 into time, so t is 4 second, right? बुलेट को उधर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4 second. अब मुझे बताओ what is the y coordinate of the bullet at that point? ut initial velocity is 0, Yes. plus half into 10 into 4 का square, so y will become 16 into 5, कितना हो गया? 80 मीटर। सो बुलेट जो है वो 80 मीटर नीचे से निकल जाएगी, सो शी विल मिस द टारगेट। ओके, तो इफ यू वांट टू शूट समवन, डू नॉट फायर स्ट्रेट, यू हैव टू फायर एट सम एंगल। ओ सर, ओके सर अगर समझो सर उसको हिट हिट मतलब उसके हेड पे एम किया और उसके मतलब स्टमक पर लगेगा तो हाँ ये तो वो फिजिक्स हो है। जाएगा भाई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट जिस चीज को तुम एम करोगे बुलेट वहां नहीं जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, बिकॉज हाँ ऑफ सर। ग्रेविटी। फाइन, ओके। सर 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 हाँ, एक हाँ, सवाल है। हाँ, हाँ, अभी समझो मैंने फायर किया और हाँ। गन रिकॉइल हुई और इतनी कि नहीं बुलेट की उसको छोड़ दो, डायरेक्शन नहीं सी नहीं सी सर सी आप हाँ, सर समझो हाँ, अगर बुलेट सॉरी गन इतनी हाँ। रिकॉइल हुई मतलब पीछे आई तो बुलेट की मोशन चेंज हो गई और प्रोजेक्टाइल मोशन बन गए तो शायद नहीं लग होगी ना, सकती है। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, बिकॉज द गन इज रिकॉइलिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, है ना? अच्छा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होएगा भाई, जो उसका स्पीड है 50 मीटर है वो 51 हो जाएगा, मान लो 49 हो जाएगा। उससे जो हमारा वर्टिकल जो है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, बिकॉज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ओके। चलो अब इसका केस 2, केस 2 में क्या हुआ, जैसे वो यहाँ पे हमारे पास में समझे ना, यहाँ पे हमारे पास में गर्व, इसने क्या क्या वो हुआ ना, बुलेट फायर किया। जैसे ही बुलेट फायर किया, गर्व को लगा कि चलो यार एक बुलेट हमारे पास में आ रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तो कहते रूफटॉप से गिर जाता हूँ, कूद जाता हूँ, एंड गर्व जस्ट जंप। तो ये गर्व यहाँ पे आ रहा है, फ्री फॉल हो रहा है गर्व का। तो बताओ
बुलेट गर्व को हिट करेगी या नहीं करेगी? वो तो सर शायद अगर वो करेगी, 80 शायद मीटर्स पे करेगी, है तो फिर तब नहीं हाँ होगा। शायद करेगी। शायद कॉस करेगी, नीचे आएगा तो प्रोजेक्टाइल कर मोशन सकती है, तो it will hit. लेकिन कर लेकिन सकती है सर। लेकिन गोली की अगर एक्सेलरेशन उसके एक्सेलरेशन से ज्यादा हो तो क्यों नहीं ना, ग्रेविटी तो सबके लिए सेम ही होती है। हाँ इट विल हिट कर, सर हिट कम है ना बुलेट का। हाँ तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज माई इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हाँ ये है। ठीक है, सो इट विल हिट। अगर गर्व ने स्मार्टनेस दिखाई, अगर गर्व यहाँ पे चुपचाप बैठा रहेगा तो ही विल बी सेफ, बट अगर गर्व वहां से जंप कर गया तो ये जो बुलेट है ये यहाँ से यूं आ रही है, गर्व यहाँ से यूं आ रहा है, ये स्ट्राइक कर देगा। क्यों? देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बुलेट का, अपना 80 मीटर हुआ ना। यस सर। और उतने ही टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा गर्व का, हाफ GT स्क्वायर ही होने वाला है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, अपना 80 मीटर ही होगा। सो इट विल हिट। ठीक है, यस। तो इफ समवन इज फायरिंग एट यू, जस्ट स्टे स्टिल, डोंट मूव। लग जाएगा ना फिर। कहाँ पे लगी यार बताओ ना। सर एकदम सामने खड़ा है तो लगेगा। फर्स्ट केस में कहाँ लगी गोली बताओ। सर बाजू में हो जाने का। बच सर अगर उसका स्नाइपर है। ओके ओके, अब देखो सुनो 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 सुनो, अब रियल लाइफ केस हम देखते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, बुलेट का जो स्पीड होता है वो थाउजेंड्स में होता है। ठीक है, तो बुलेट जो है वो हमारे पास में माइक्रो सेकंड्स में पहुंच जाती है, और माइक्रो सेकंड्स में जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज वेरी स्मॉल। हाँ हाँ राइट। आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी कम दिया था ना, इसलिए धीरे हुआ था। हाँ इसलिए आया था, नहीं तो ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट आता है दिस इज हार्डली, जो हमारे पास है ना रियल केस में देखोगे तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आता है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इन 1000। ओके, सो इसलिए तुमको हिलना पड़ता है, बट यहाँ पे हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं। चलो एक केस और बताओ, एक केस और करते हैं। ये कहते होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, ये हमारे पास में ग्राउंड, ठीक है, ये हमारे पास में एक पोल, इसकी हाइट तुमको h दी हुई है, यहाँ पे कोई खड़ा है। बताओ अब इस बार किसको खड़ा करना है यहाँ पे, किसको अच्छा लगता है शूटिंग करना? मेरे को सर खड़ा कर दो सर। मेरे को जो लोगों को खड़ा कर दो सर। चलो यहाँ तो एक उसको दिखा देते थे, मंकी को बिठा देते हैं। ठीक है, मंकी को शूट करना है, और यहाँ पे सपोज हमने आयुष को बिठा दिया। थैंक यू सर। लेकिन बेटा आयुष तुमको फिजिक्स नहीं आती है, तुमने क्या किया, मंकी को देखा एकदम स्ट्रेट, ठीक है, और तुमने मंकी को एम करके फायर कर दिया बुलेट को। ठीक है, और मान लो इसका वेलोसिटी है u। तुमने सोचा कि बुलेट एकदम स्ट्रेट जाएगा, लेकिन अब बुलेट तो स्ट्रेट है ना, जाता नहीं है, उसका मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल होता है ना। हाँ, तो तुमने फायर कर दिया, तो तुम्हारी जो है बुलेट, उसका जो मोशन होगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना, वो तो कुछ ऐसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, लेकिन जैसे तुमने फायर किया, एक तो तुम बेवकूफ कि तुमने स्ट्रेट फायर किया, मंकी तुमसे भी है बड़े वाला बेवकूफ, कूद गया। जैसे तुमने फायर किया, मंकी ने हाथ छोड़ दिया और मंकी का फ्री फॉल हो रहा है, मंकी यहाँ पे आ रहा है। तो बताओ विल द बुलेट यस सर हिट द मंकी? बताओ, आंसर इज यस। Now you have to prove it. Now you have to prove it by equation that if monkey जो है, monkey ने उस टाइम हाथ छोड़ दिया, monkey का free fall हो रहा है, then my bullet will hit the monkey. देखो एग्जाम में ऐसे भाई वही तो है ना, इक्वेशन से प्रूव करो आप। ठीक है, तुमने monkey को डायरेक्टली एम किया है और तुमने फायर कर दिया, राइट, बिकॉज तुमको फिजिक्स नहीं आती, तुमने सोचा कि बुलेट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे तुमने एक बेवकूफी तुमने कर दी, लेकिन मंकी ने अपने दूसरी बेवकूफी कर दी, मंकी ने अपना हाथ छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक मिस्टेक करते हो तो आंसर तुम्हारा गलत आता है, और फिर तुम एक और मिस्टेक कर दो तो आंसर फिर से सही हो जाता है। तो ये वही है। वाह, बच गए सर, पक्का हो जाता वरना हाँ नहीं लगता हाँ तो सर बेइज्जती हो जाती। हाँ तो अब मंकी जो है उसने हाथ छोड़ दिया, मंकी का फ्री फॉल हो रहा है। सो यू हैव टू प्रूव दैट इसका होगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू सॉल्व लेक्चर 7 also. 7। ठीक है, ओके, विल मीट ऑन वेडनेसडे। सर एक बार स्पीड दिखाओगे, स्पीड हाँ? बताओगे वापस, कोई फर्क नहीं स्पीड पड़ता। वाला स्पीड वापस बताओगे एक बार। एक सेकंड, स्पीड स्पीड ऑफ वाला कौन सा? ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सप्लेन क्या था वो? यहाँ पे भाई देखो ना, हाँ जब सर, हाँ। पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो उसके पास में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक यहाँ पे आता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो पार्टिकल का रिजल्टेंट स्पीड क्या होता है? सर पर स्टार्टिंग में हमने वेलोसिटी वेक्टर यू U आई है। कैप प्लस वी जे कैप निकाला था ना? नहीं है ना, इनिशियल नहीं है वो तो, किसी भी टाइम और टी पे है। टी इक्वल टू 0 पे कितना हुआ? टी इक्वल टू 0 इसको यू बोलते आई हैं ना, कैप, इनिशियल पॉइंट को। तो हाँ वहां यू पे आई सिर्फ कैप। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आई कैप में है, इसीलिए हमने बोला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। ठीक है, तो एज द पार्टिकल मूव्स it is gaining the vertical velocity, and that vertical velocity is slowly increasing because it is coming down. So when will it hit the ground, so the vertical velocity will become root अपना 2gh, and the horizontal is same u. So my resultant velocity will become this vx का तो square। जीटी क्या था? हाँ, जीटी क्या था? फर्स्ट gt आपने तो अपन, वेलोसिटी वेक्टर, हाँ अबे वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितना होगा उसका y कंपोनेंट, उसका एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ पे देखो ना, ये उसका जी एक्सेलरेशन g। तो आफ्टर टाइम t उसका वेलोसिटी कितना होगा? जीटी, gt। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स, जे कैप। हाँ, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा ना जे कैप, ये लिखा हुआ, और ये हमारे पास में आई कैप। तो जब कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप में दिया होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का। जे कंपोनेंट का स्क्वायर। फाइन, हाँ चलो बाय बाय। सॉल्व करना और क्वेश्चन करेंगे फिर अपन। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय सर। सर हैप्पी हाँ, रक्षाबंधन सर। मैंने देखो आपको रिप्लाई को मैसेज किया था ना। कौन सा मैसेज?